ठीक है, सही। तो करंट पिक्चर वी नो every atom, every object is मतलब matter is made up of what? Matter. Charges. Atoms are made up of electrons, protons and neutrons. And charge is inherited property of electrons and protons. This is an interesting statement we have seen in last lecture, right? यहाँ पे कुछ ऐड करूंगा। सी charge is a physical quantity and it can be measured. Unit for measurement of charges, SI unit for measurement is coulomb, written by capital C. Then charge on one electron, this is current picture. Now we know this very well. Charge on one electron is how much? Charge on one electron is how much? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. And charge on one proton is what? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. The nature of charges on the two particles is different. Coincidence was that the charge on electron, they said is negative, and charge on one proton is positive, right? Now, this does not imply that charge on electron is lesser than charge on proton. Charge on both of them is exactly same. It's the fact, it's a coincidence that charge on electron was named as negative charge and charge on proton was named as positive charge, right? Otherwise, charge on both of them is exactly same. Now we know what does electrically neutral means. Electrically neutral is what? Electrically neutral. When I say any object is electrically neutral, suppose this is some object which is electrically neutral, then what does it imply? It implies number of electrons is same as number of protons, right? So when I say electrically neutral, then it means number of electrons is same as number of protons. So net charge on it is 0. Net charge on it is 0. Okay. So this is what is electrically neutral. Now, when bad conductors electrified, now what is the question of what is the meaning of being electrified? So when insulators are rubbed against each other, some electrons are transferred from one object to other. One object to other, leaving net charge on both of them. Leaving net charge on both objects. And kaise? I'll show you. Now suppose this was a plastic rod, a glass rod, right? And this was silk fiber. So just to say, here suppose there were 10 protons and 10 electrons. Though the number of electrons and protons is very large, but समझो 10 proton 10 electron, and इसमें समझो 12 proton and 12 electron. So both of them are electrically neutral. But when you rub these two against each other, some of the electrons from here are transferred to this object. So now here electrons are lesser in number. There is electron deficiency in glass rod. So glass rod acquires more positive. Now it has net positive charge. See, if I say what is the net charge on it? So 10 protons. So 10 into 1.6 into 10 raised to minus 19. 8 electrons. So 8 into 1.6 into 10 raised to minus 19. So net charge on it is 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19. That too positive. So 3.2 into 10 raised to minus 19 coulomb is charge on it. At the same time, this has minus 3.2 into 10 raised to minus 19. So we say both of them are electrified now. This has acquired positive charge and silk has acquired negative charge. Whatever. Both of them are electrified. And once electrified, they exert force of attraction on each other. Right? Sir, but sir, कौन से basis पे कौन सा object
नेगेटिव हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है, ऐसा जी, कुछ? वैसे वैसे तो ये पूरा लिस्ट बनी हुई है। बेसिकली ये केमिस्ट्री है, आप रिलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिस मटेरियल का ज्यादा होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसके पास ओके इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट। ओके। बट ये हमारा कंसर्न नहीं है, बिकॉज अगर आप पूरी लिस्ट निकाल के देखोगे ना, किसी किसी बुक्स में लिखी हुई है, तो मोर देन 40-50 ऑब्जेक्ट लिस्ट किए हुए हैं और एक ऑर्डर दिया हो कि किसमें किनको रब करोगे तो किसमें क्या जाएगा। दैट्स नॉट ओके। नीडेड। वो एक एग्जांपल मुझे भी याद रह जाता है, बाकी सब मुझे भी याद नहीं। ग्लास एंड सिल्क के केस में इट्स नेगेटिव चार्ज, which सिल्क एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड हाँ ग्लास एक्वायर्स पॉजिटिव, एंड ओके प्लास्टिक और सिल्क के केस में उल्टा हो जाता है। बाकी सब याद नहीं करना है आपको, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ओके दैट, राइट। ओके। सो इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिफाइड होना मीन्स व्हाट? एक्वायर चार्ज, राइट। नेट चार्ज उसको बचना चाहिए। नेगेटिवली चार्ज मीन्स व्हाट? एक्सेस इलेक्ट्रॉन, राइट। नेगेटिवली चार्ज मीन्स excess electron, excess electron. So number of electrons is greater than number of protons. Basically electrons are added to object, electrons are added to the object to make it electrically negative. Negatively charge बनाने के लिए उस पे electrons add करना है. And what do you mean by positively charged? Positively charged means what? Electrons are removed. If I say positively charged, then electrons are removed. Electrons are removed. Deficiency of electron. Deficiency of electron. So number of electrons is lesser than number of protons. So to make anything positively charged, you have to remove electrons from there, right? And to make anything negatively charged, you have to add electrons, some electrons. right? Now, so this is your current picture. Now we understand exactly क्या हो रहा था वहां पे। तो वहां पे क्या हो रहा था, पहले हर एक चीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इक्वल थे, सो कोई भी इंटरेक्शन उनमें नहीं था, नेट चार्ज सब पे जीरो था। फिर जब आप रब कर देते हो दो ऑब्जेक्ट्स को, नेसेसरीली इंसुलेटर, दिस डजंट हैपेंस इन कंडक्टर्स, विल डिस्कस व्हाट इज ओके कंडक्टर, बट ये सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर्स के साथ होता है। तो इंसुलेटर्स को जब आप रब करते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक से निकल के दूसरे में चले जाते हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, वन ऑफ देम एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड अदर एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, दैट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, एंड जिससे ट्रांसफर होते हैं, दैट इज लेफ्ट विद पॉजिटिव positive charge, right? And then we say they are electrified and अभी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। Now next discussion is what are conductors. Since from junior classes onwards, we were like since 6th or 7th, I suppose this term was introduced, and they said it is any material which allows electric current to flow through it is known as conductor, right? But question is, why anything allows to flow current through it and other not other one? Suppose there's a water in a tank and there's be an empty tank, right? And suppose I want to transfer water from here to here without any pipe. So what I need is carrier, right? There's a container which acts as a carrier. So what I'll do is I'll draw some water in this, I'll pour some water in this, and I'll transfer it here. Now, if this container was fixed, it was nailed to some surface, I cannot use this to transfer water from here to here, right? Because it is fixed, it is not free. Now similar thing happens in a conductor. My aim is what? To transfer charge from one point to another. Aim is to transfer charge. I want to transfer charge from some conductor to another. This is suppose some positively charged conductor, right? Now I want to transfer some charge here. So how to do that? I need charge carrier. चार्ज ऐसा कुछ नहीं होता कि मैंने हाथ से लिया वहां डाल दिया या बकेट में से डाल दिया। आई नीड चार्ज कैरियर। भगवान ने चार्ज हमारे सिलेबस के। सर आप म्यूट हो गए। हेलो। हाँ ओके ठीक है सर। हेलो।
हाँ ठीक है सर। So to transfer charge, what we need is charge carrier. I need some charge carrier जो charge carry कर सके. अगर भगवान charge carry करना है तो one is electron and others. So electron and proton को उधार होगी charge. तो जिस material में charge carrier होगी वो conduction का काम करेगा, वो charge transfer करेगा. Now the thing is that every substance has an electron proton. But possibility है कि हर एक material के electrons free हैं, proton तो कभी free नहीं होता, proton is nucleus, and never for conduction, that is charge. Now, electrons, few electrons may be free. Not all the electrons are free. The सारे electrons free नहीं. कुछ electrons होते हैं जो free होते हैं. The few electrons of some material. Some material are free. कुछ material ऐसे होते हैं. The few electrons of some material are free to move. And charge transfer और इसी को conduction बोलते हैं. ओके Charge transfer. क्या मतलब है? Protons are held in nucleus, and ये जो protons जो nucleus पे रहते हैं, and cannot leave atoms of conduction. But few electrons of some material are free to move, and hence can help in charge transfer. तो वो किसी material के कुछ electrons ऐसे होते हैं जो relatively free होते हैं, they are not tightly bound to their nucleus, and those electrons can move within body of conductor. तो ये electrons हैं, समझो वो free electrons हैं. These are free electrons. तो ये electrons हमारे charge transfer में काम करेंगे. कैसे? जैसे ये neutral है, इसमें electron proton बराबर है. electron बराबर. ये पॉजिटिव है, तो ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा आगे. तो धीरे-धीरे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगेंगे. एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये प्लस को मॉडिफाई करके एक इलेक्ट्रॉन आएगा प्लस, लेकिन ये प्लस होता जाएगा तो वो इधर से प्लस करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा. तो जितना इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आके इसको मॉडिफाई करेंगे उतना इलेक्ट्रॉन वो पीछे से कवर करेगा. लेकिन के बाद में ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, एंड टू सरवाइव ये भी पॉजिटिव हो जाता है. कुछ तो एक चीज होती है जिसको हम पोटेंशियल बता गया है, तो वो जब तक सीन नहीं हो जाता सबको बता रहे पॉइंट ध्यान से लेके यहाँ तक सब पॉसिबल है. लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है. हमारा कंसर्न ये है कि चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, तो चार्ज यहाँ से यहाँ लेके जाने का काम किसका है? भगवान ने इसको चार्ज दिया, जैसे वाटर के लिए प्रोटॉन्स. तो ये चार्ज ट्रांसफर करने का काम किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का. वो भी सबके सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते. कुछ ही मटेरियल्स हैं उनके कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, राइट? तो वो जो कुछ मटेरियल में बोल रहा हूँ, दोज मटेरियल्स आर नोन एज कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स, समटाइम्स गुड कंडक्टर्स. बाय डिफॉल्ट कंडक्टर का मतलब भी गुड कंडक्टर ही होता है. तो गुड कंडक्टर्स होते हैं कौन से मटेरियल्स व्हिच हैव free charge carriers, right? In solids charge carrier कौन होते हैं? Electrons act as charge carrier, whereas अगर gases और liquids होंगे ना, in liquids and gases, ions are responsible. वहाँ free electrons नहीं होते. Ions act as charge carrier.
राइट, चार्ज कैरियर। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर्स आर एनी मटेरियल, कंडक्टर इज एनी मटेरियल व्हिच हैज फ्री चार्ज carriers. Free charge carrier कौन होंगे? If it is example of solid, then it's electrons which act as a free charge carrier, and if it is case of liquid or gas, then ions are responsible for conduction, or ions carry charge or transfer charge from one place to another. लिक्विड और गैस में भी तो इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, बट क्यों नहीं ऐसा? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ निकलेंगे? कहाँ? इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते हैं, कंडक्टर के विद इन बॉडी घूमते हैं, राइट? कंडक्टर में यहीं पे अंदर घूमते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गया तो दूसरा आता। अब जब आयन, जब ये बोलते हैं लिक्विड की बात आती है, तो लिक्विड में इलेक्ट्रॉन्स कभी नीचे नहीं उतरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नीचे नहीं उतरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आयंस रहेंगे। जैसे NaCl आपने डिसॉल्व किया तो Na+ रहेगा एंड Cl- रहेगा, राइट? The electron which is released by sodium does not move in the liquid. क्यों? वो कैसे घूमेगा? दोनों में से कोई ना कोई तो उसको खींच ही लेगा ना। आप सोचो कि NaCl है, ठीक है, तो Na का या तो Cl का, दोनों का एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो निकलता तो Na का ही है, तो Na का एक इलेक्ट्रॉन निकल के घूम रहा है। अगर ये वाटर में घूमने आ जाएगा तो वो तो इसको पुल कर ही लेगा ना, Cl उसको पुल कर ही लेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कभी सेपरेट होते ही नहीं है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, मतलब होते हैं सेपरेशन, लेकिन वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगानी पड़ती है। और जब बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लगानी पड़ती है, इफ यू रिमेम्बर, कभी शायद जूनियर क्लास में पढ़ा हो, ये क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। हाँ, कैथोड वाला जो कैथोड ट्यूब होता है, तो उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं, बट वो बड़ी मतलब अलग कंडीशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाना पड़ता है। तो वो यहाँ पे हम सिचुएशन नहीं स्टडी करते हैं, तो हम यहाँ पे सीधी बात बोलते हैं, सॉलिड्स आर द वंस, इन सॉलिड्स electrons act as a charge carrier, and in liquids and gases it's ions which are responsible for conduction or act as a charge carrier. तो ये आपको याद रखना है, राइट? क्लियर ना? तो कंडक्टर मीन्स व्हाट? एनीथिंग which has free charge carrier. फ्री चार्ज कैरियर। अब सॉलिड होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर लिक्विड्स एंड गैसेस होंगे तो इट इज आयंस, राइट? तो ये हो गया आपका कंडक्टर्स। एंड इंसुलेटर्स आर वन which do not contain any free charge carrier, जिसमें नहीं होते। चार्ज कैरियर उसमें भी है बट फ्री नहीं होते, फ्री नहीं है। हाँ, राइट? सो बेस्ट एग्जांपल है जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, दैट इज कॉपर। ऑब्वियसली इससे अच्छा कंडक्टर भी होता है, सिल्वर इज बेस्ट नोन कंडक्टर, बट कॉपर की बात करें हम लोग, व्हिच इज वाइडली यूज्ड, तो कॉपर इज अ बेस्ट नोन कंडक्टर। जैसे nearly 1 free electron exists per atom. Copper contains 1 free electron per atom. That numbers nearly 10⁻23 free electrons per centimeter cube of copper. So contains 1 free electrons per atom. एक एटम के पीछे एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? एंड अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करोगे तो नियरली 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर, which is a very large number. See, imagine 1 centimeter, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ही हो गया। इतना छोटा सा कॉपर का क्यूब लोगे ना इसमें, तो 10⁻23, that is nearly million of million of million of million, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। इट्स अ वेरी लार्ज नंबर, राइट? तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, उतना अच्छा कंडक्टर होने का चांस होता है। ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, राइट? बट फिलहाल मेरे लिए क्या है, जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना अच्छा कंडक्टर, राइट? सो दिस इज व्हाट आई से, व्हाट आई मीन टू से इज कंडक्टर, राइट? नाउ चार्जिंग, हाउ डू वी चार्ज द कंडक्टर और इंसुलेटर? तो पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये किसका होता है? फॉर इंसुलेटर्स ओनली,
charging by friction. This happens. This is the method of charging for insulators only. This method cannot be used to charge conductors. इंसुलेटर्स को कैसे करते हैं हम लोग? जैसे ये दो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, दो इंसुलेटर लिए, कुछ भी हो दो, दोनों को रब करो एक दूसरे के अगेंस्ट, तो ड्यू टू फ्रिक्शन, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स get transferred from one object to another. तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन समझो इधर चले गए, तो ये बन गया पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव. इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. ये वर्ड भी हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ. ओके. नेक्स्ट होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन. दिस इज फॉर कंडक्टर्स. इंडक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है. This happens only in conductors. Charging by induction. कैसे करते हैं इसमें? Suppose करो एक metal sphere है. I need to charge it. This is some metal sphere. Right? I need to charge it. मैंने क्या किया? समझो आप मेरे को इसको पॉजिटिवली चार्ज बना है, राइट? पॉजिटिवली, या उसके पहले मैं अर्थिंग का मतलब बता देता हूँ. अर्थिंग. What does this word means? Earthing. तो earthing का मतलब है connecting any appliance या any object with earth. Earth से उसको connect करना है. कैसे? By means of a conducting wire. जैसे एक समझो आपके घर का high tension appliance है, high voltage में काम करने वाला appliance है, maybe AC. Suppose this is fridge. Suppose. This is a refrigerator. Now, हम लोग क्या कहते हैं इसको? इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि बॉडी में इसके चार्ज आ जाए. कभी भी आप देखोगे ना ऐसे डेली लाइफ में थोड़ा सा टच करो तो शॉक लगता है. वो क्यों लगता है? इसके बॉडी के ऊपर एक चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है ड्यू टू सेवरल रीजंस. कुछ भी रीजन हो सकता है. तो हम लोग क्या करते हैं, वो आपको शॉक नहीं लगे तो इसके लिए इसको पहले ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं. तो वो कराता अर्थ, मतलब एक कॉपर वायर लिया और उसको डीप अर्थ मतलब 1-2 मीटर नीचे डिग करके सॉल्ट ऑयल डाल के उसको कॉपर प्लेट के साथ दबा देते. तो उससे क्या होता है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज अगर निकला यहाँ पे, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है अर्थ में, राइट? तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर में सारे इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चले जाएंगे जो एक्सेस थे, राइट? अच्छा, एक और बात बोलना भूल गया मैं. तो भी शॉक कैसे लगता है सर? फिर शॉक नहीं लगेगा ना, तो इसलिए तो बोलते हैं घर में अर्थिंग नहीं होगी तो शॉक लगेगा. अगर घर में प्रॉपर अर्थिंग होगी तो आपको शॉक नहीं लगेगा. क्यों? जो भी चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो पहले अर्थ में चला जाएगा. हाँ, तो फिर जिन ऑब्जेक्ट से अगर करंट लग सकता है वो अर्थिंग नहीं किए रहते. जिनसे लग रहा है आपको, मतलब उनकी अर्थिंग नहीं हुई है. अगर अर्थिंग होगी तो कभी भी आपको शॉक नहीं लगेगा. तो और जैसे जैसे मोबाइल चार्जर एक तो वैसे इंसुलेटर का बॉडी है उसकी, बट उसमें क्या चार्ज आने का चांस कम रहता है. जो लो वोल्टेज पे काम करते हैं, जो जिसमें करंट कम होता है, जो जैसे अभी ये बल्ब है, एलईडी बल्ब है, उसमें ज्यादा करंट फ्लो नहीं होता. अभी एसी की बात करो, एसी बहुत करंट लेता है. तो वो सब जो ज्यादा वोल्टेज पावर कंज्यूम करते हैं, उनमें ये चार्ज आने का चांस ज्यादा रहता है, तो उनकी अर्थिंग बहुत जरूरी होती है. अच्छा. और जिनकी मेटल बॉडी है उनको तो नेसेसरीली, अब जैसे कंप्यूटर है तो उसके बाद आपका फ्रिज हो गया, तो ये सब चीज के अर्थिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो शॉक लगने का चांस बहुत रहता है. फिर अगर आप इस पे समझो किसी भी रीजन से पॉजिटिव चार्ज आ गया, किसी भी रीजन से, तो वो क्या करेगा, ग्राउंड से जैसे आपने कनेक्ट कर दिया तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और इसको अंदर आ जाएंगे और इसको नलिफाई कर देंगे, राइट? तो ऐसे कभी भी आपको चार्ज एक्यूमुलेट होने नहीं देगा बॉडी पे, राइट? ये होता है. एक सवाल बड़ा जेन्युइन सा बच्चों ने पूछा मेरे से कि सर ऐसा अर्थ
कब तक चार्ज लेता रहेगा? ऐसे तो आप सालों साल से अर्थ को चार्ज दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, तो कब तक वो चार्ज लेगा? और क्या खुद ये चार्ज इसका नहीं होता जा रहा है? आपने नेगेटिव देते गए देते गए देते गए तो अर्थ हाँ नेगेटिवली चार्ज नहीं हो जाएगा? तो आंसर बड़ा सिंपल है इसका। आप जो चार्ज दे रहे हो अर्थ के अंदर, वो चार्ज है किसका? वो किसका चार्ज है? वो वो अल्टीमेटली है तो अर्थ का ही ना, कहीं और से निकाला होगा, इधर डाल दिया। आप बोल रहे हो फ्रिज के ऊपर हाँ इलेक्ट्रॉन आया, तो फ्रिज के ऊपर इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स से थोड़ी ना आया, ये इलेक्ट्रॉन हाँ अर्थ का ही तो है ना। हाँ तो जो कुछ भी आप चार्ज दे रहे हो वो सब अर्थ का ही है, नहीं? तो ये बाहर से चार्ज हम लेके नहीं आ रहे, अर्थ का ही चार्ज है, यहाँ से निकाला वहां दे दिया, वहां से निकाला यहाँ दे दिया, राइट? तो अर्थ में आप कितने भी चार्ज डालते जाओगे, हाँ ऑब्वियसली अगर बाहर से सन से लेके आ रहे हो, सन से भी आता है, हाँ? हाँ तो औरोरा वर्ड सुना होगा, तो जैसे सन होता है, सन से चार्ज सोलर फ्लेयर बोलते हैं, उससे चार्ज आता है, तो वो अर्थ में एंटर करता है, तो उससे अर्थ चार्ज होने लगते हैं। बट अर्थ का ही चार्ज यहाँ से निकाल के वहां डाल दिया तो उससे अर्थ चार्ज नहीं होगा, नहीं होगी। so this is what we say is earthing. So earthing करने से क्या होता है? Whatever excess charge is accumulated on the conductor, that is transferred to electron. If negative charge is accumulated on the conductor, then excess electrons are transferred to earth. अगर पॉजिटिव होगा तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं कंडक्टर, नहीं? तो अब देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। सपोज दिस इज अ मेटालिक स्फीयर kept on a insulating frame ताकि अर्थ से कनेक्ट ना हो। Now suppose I want to make it positively charged, तो मैं क्या करूंगा? पहले से एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आया which is negatively charged। सर मैंने क्या वो किया? बल्ब जैसा क्या है? मेटालिक स्फीयर है, मेटल है, Okay. मेटालिक स्फीयर है, समझा? मेटालिक स्फीयर एंड दिस इज इंसुलेशन, इंसुलेशन है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ, प्लास्टिक का रॉड है या कुछ ऐसा रखा। तो मैंने क्या किया? एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर इसके पास लेके गया ना। दिस मेटालिक स्फीयर कंटेन्स व्हाट? लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक बात बोलना भूल गया मैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट फ्रॉम एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। कई लोग मिक्सअप कर लेते हैं इसको। एक मटेरियल है जिसमें कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? There's an object which has excess electrons, protons कम है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो will it participate in conduction? कर भी सकता है ना सर? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। एक्सेस इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब किससे है? It फ्री should be a इलेक्ट्रॉन से। कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, राइट? भाई एक्सेस इलेक्ट्रॉन तो आप बैड कंडक्टर को भी दे सकते हो, दैट डजंट मीन कि इट बिकम्स अ वीक कंडक्टर, राइट? तो मैंने क्या किया है, आ जाते हैं वापस में चार्जिंग बाय इंडक्शन। मेरे पास एक पहले से चार्ज कंडक्टर है, उसके हेल्प से मैं इसको चार्ज करूंगा। This is a metallic sphere which contains lot of free electrons. Obviously, those are not excess electrons. उनका हिस्से का पॉजिटिव चार्ज है। होगा क्या? ये जो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, राइट? तो इन इलेक्ट्रॉन्स को वो रिपेल करेगा, तो नेक्स्ट पिक्चर आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे यहाँ और उनका काउंटर पॉजिटिव चार्ज आपको इस एंड पे अपीयर होगा। ये आपने होल्ड कर रखा है नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर, ठीक है? अब अगली पिक्चर में आपने क्या करना है, आप इसको कनेक्ट कर दो ग्राउंड से। उससे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी रिपेल्ड है इससे, आपस में भी रिपल्शन नहीं है, तो ये सारे भाग जाएंगे ग्राउंड में। These electrons will get transferred to ground. नेक्स्ट पिक्चर कुछ ऐसी नजर आएगी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा आपको, राइट? एंड यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज। अब आप अर्थिंग हटा दो, अर्थिंग हटाने के बाद आप इसको भी हटा दो, इसको हटा दो, लास्ट में चार्ज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। तो मैंने कहीं से चार्ज लाके
मतलब बाहर से लाके चार्ज इस पे नहीं डाला, एक चार्ज कंडक्टर मेरे पास था, उसके हेल्प से चार्ज इंड्यूस किया। ये वाला चार्ज मेरे पास अभी भी है, ये नया चार्ज कंडक्टर है, तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। I have not transferred or touched that conductor, metallic sphere. हाँ, हेलो 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 हेलो। हेलो हाँ सर। हेलो 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 सर, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, हाँ, आ रही आवाज? आवाज? हाँ आ रही है सर। So this is charging by induction. इंडक्शन। इसमें मैंने दूसरे का चार्ज इसको ट्रांसफर नहीं किया, मेरे पास ये चार्ज कंडक्टर था, उस चार्ज कंडक्टर चार्ज कंडक्टर ये जो चार्ज है उससे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होता है। So this is what this is charging by induction. अभी मुझे